देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਡਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਆਪੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਨਾ ਤੇ YouTube ਨੇ ਜਾਂ Facebook ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਡਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਆਪੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਨਾ ਤੇ YouTube ਨੇ ਜਾਂ Facebook ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, BP ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, BP ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, मैं किडनी डोनेट करना चाह रहा हूँ, मैं किसी की मदद करना चाह रहा हूँ। कोई डोनेट नहीं करने चाह रहे, वो धंधा है, वो किडनी वेच के तुहाडे कोल पैसे लुटेगा। वेचना अपराध है, वो की करनगे पैसे ले लेंगे, भज जाएंगे, फोन नंबर बंद कर देंगे, बंदा गरीब भी हो गया प्लस उधरों बीमारी तो इलाज भी नहीं होया। एक होर चल रहा है आजकल, लोग अखबार एक खबर छपवाते हैं कि मेरी किडनी फेल है, मेरा नाम ये है, इस गांव का हूँ, मेरे को इतने पैसे दो, मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा ICICI कोड है। अच्छा, जेडे दानी लोग हैं वो मदद कर भी देंगे ने,
बट ट्रांसप्लांट हो कितने रहे है? पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2.5 लाख लोगों की वेटिंग लिस्ट है किडनी की, और अभी तक 52,000 टोटल हुए हैं पिछले 6 साल में। तो कहां नंबर आने वाला है? और फिर दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद क्या गारंटी है किडनी चलेगी? फिर फेल हो जाती है। मैं पिछले 27 साल से हेल्थ फील्ड में हूं, मेरे को आज तक एक व्यक्ति मिला जिसकी किडनी 21 साल चली, 2 या 3 मिले जिनकी 10 से 12 साल चली, बाकी सब 3 साल, 2 साल, 5 साल में फेल हो जाती है। और कुछ लोगों की तो टेबल पे ही फेल हो जाती है। और तो और, जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है वो आपसे पहले साइन कराता है कि मर गए, मेरी जिम्मेदारी नहीं। कई लोग टेबल पे मर जाते हैं, हार्ट के ऑपरेशन के टाइम पे, किडनी के ऑपरेशन के टाइम पे, या लीवर के ऑपरेशन के टाइम पे, लेकिन वो उस टाइम मरा हुआ नहीं बताएंगे ऑपरेशन के टाइम पे। उसकी तबीयत खराब होगी, आईसीयू में ले जाना पड़ा, 2 दिन बाद बताएंगे मर गया। मतलब कभी भी डॉक्टर ना इमीडिएट नहीं बताएंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट करते डेथ हो गई, फिर तो लोग कराएंगे नहीं। क्या करेंगे? कॉम्प्लिकेशंस आ गई, उसका बीपी शूट कर गया, तो ट्रांसप्लांट तो हुआ नहीं जी, उसको आईसीयू में ले जाना पड़ा, बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2 दिन बाद बोल देंगे डेथ हो गई। तो क्या हुआ? लोगों के दिमाग में क्या है, डेथ किडनी फेल से नहीं हुई, डेथ तो आईसीयू में हुई, ऑक्सीजन लगी हुई थी। क्योंकि वो गेम है, ये बिजनेस है, ये प्लानिंग है। ये आप लोगों को सोचना है कि इस मेडिकल माफिया से, इस फार्मा माफिया से, इस ड्रग माफिया से कैसे बचना है। हम हिम्स हॉस्पिटल, जिसका नाम है हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, इसका नाम में ही इंस्टीट्यूट है। यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, लोगों को खाना पीना सिखाते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा। उस चीज़ों को सिखाकर हम काम कर पा रहे हैं, और उस चीज़ों को सिखाकर हम अपनी लोगों को ट्रेनिंग और एजुकेशन दे पा रहे हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿਮਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? देखो, पूरे भारत में इस टाइम 14 हिम्स हैं और 130 हमारे क्लिनिक्स हैं। 14 हिम्स में 4 बड़े हैं, डेराबस्सी, लखनऊ, मुंबई, मेरठ, ये बड़े हैं, 100 बेड से ऊपर के हैं। और जो गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, लुधियाना, चंडीगढ़, भागलपुर, गोवा, थाने, मुंबई, ऐसे कई जगह पे है। ये डे केयर है। यहाँ पे एडमिशन की सुविधा है, यहाँ पेशेंट को रखा जाता है, उसको थेरेपी दी जाती है पंचकर्मा। जैसे किसी का घुटना खराब है, डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, घुटने के ऊपर एक उड़द की दाल का मटेरियल लगा के उसमें ऑयल भरते हैं, उसको जानुबस्ती बोलते हैं, एक मेडिकली प्रूवन आयुर्वेदिक ऑयल है, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, घुटना ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन के। ऐसे डॉक्टर बोलता है कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम रीढ़ की हड्डी पर करते हैं, उसको कटी वस्ती बोलते हैं। गर्दन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम ग्रीवावस्थी करते हैं। ऐसे ही पेट में जैसे लोग बोलते हैं आपके बच्चा नहीं हो रहा इतने साल से, आईवीएफ कराओ, बच्चेदानी में रसौली है, तो हम क्या करते हैं, उदरवस्ती करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट पे हम लीच लगा देते हैं, वो लीच क्या करती है, गंदा खून चूस लेती है और अपना हीरोडिन उस बॉडी में डाल देती है, जो उसका केमिकल है, जो मुंह की लार है, वो बॉडी में डाल देती है, वो ब्लॉकेज खोलती है। अमेरिका में इसी हीरोडिन थेरेपी की एक सिटिंग की कीमत 1 लाख से 10 लाख रुपए है, एक सिटिंग की, और हम लगभग 5 से 10 सिटिंग में ब्रेस्ट की गांठ को आधा कर लेते हैं। तो ये आयुर्वेद का चमत्कार है। आयुर्वेद में इतनी पावर है, लेकिन भारत के देश के लोगों को पता नहीं है। तो हिम्स में भर्ती होकर खाना पीना, लाइफस्टाइल, ये सिखाया जाता है। इसके अलावा हम एक पूरा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हील, HEAL। H मतलब हॉबीज, यानी कि आपको शौक है, जैसे आपको डांस का शौक है, आप डांस करो, आपको पिक्चर देखनी है पिक्चर देखो, आपको ड्राइंग करनी है ड्राइंग करो, पेंटिंग करनी है पेंटिंग करो, आपको शतरंज खेलना है वो खेलो। हॉबीज से क्या होता है, आपके ब्रेन को, सब कॉन्शियस को पोषण मिलता है, मीन्स वो खुश होता है। जब खुश होता है तो हमारी बॉडी में डोपामिन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, एंडोर्फिन बढ़ता है। हम खुशी देते हैं तो वो चारों बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डोज। D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन, इसको पूरा डोज बोला गया। इसके बाद हम बोलते हैं HEAL हील में, E फॉर अर्थिंग, हम बोलते हैं नंगे पांव जमीन पे घूमो, घास पे घूमो, अर्थिंग करो, मतलब धरती से कनेक्शन बनाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में जानवर हैं, जंगल में रहते हैं, बीमार क्यों नहीं पड़ते? और जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? वो तो आई थिंक ज़्यादातर धरती पे रहते हैं, तभी वो उनका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमें भी तो यही सिखा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में बोलते हैं नंगे पांव घूमो, बारिश के पानी में नहाओ। हम तो पेशेंट को सिखा रहे हैं बारिश के पानी में नहाना, धरती से जुड़ना। अब जो धरती में नहीं जुड़ पा रहा या कह रहा है मेरे धरती के मैं कनेक्शन नहीं है, मेरे घर के आसपास घास नहीं है या पार्क नहीं है, हम बोलते हैं कॉपर की प्लेट लेके रात को पैर के नीचे लगा के उसको घर के बाहर अर्थ कर दो, जमीन में 1.5 फुट का गड्ढा खोद के उसमें अर्थ की प्लेट डाल के उस तार से रात को अर्थिंग ले लो, तो आपको अर्थिंग का कंसेप्ट पूरा हो गया।
ऐसे ही बोलते हैं ए फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे अब मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, तो हमारे पास सिर्फ हवा का एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हम पानी के टब में बैठेंगे, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो मेरे ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गए, एक हवा का एक पानी का। तो मेरी बॉडी का पसीना निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे और मेरी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ए फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम टब बनाया हम लोगों ने। एल फॉर लिविंग वाटर। लिविंग वाटर मतलब जिंदा पानी, रिचार्ज वाला पानी, ऊर्जा वाला पानी। पानी कैसा? हम 1 मटका, 2 मटके, 3 मटके, 3 मटके एक के ऊपर एक रखते हैं। नीचे वाले मटके में टूटी लगी होती है, ऊपर वाले मटके में बड़े पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर और छोटे पत्थर, उसके ऊपर बालू, मोटी बालू, ये रख के ऊपर वाले में रखेंगे, 3/4 भरेंगे। नीचे वाले में उसी मटेरियल को आधा भरेंगे, सेम मतलब आधा मटका भरेंगे। और तीसरे वाले में एक कॉपर की प्लेट, एक चांदी का गिलास, एक रुद्राक्ष डाल के छोड़ देंगे। ऊपर से पानी टपक टपक के झरने की तरह नीचे वाले में भरेगा। वो ऊर्जान्वित पानी होगा, वो लिविंग वाटर होगा। जंगल में जो जानवर पानी पीते हैं वो कौन सा पानी पीते हैं? नेचुरल वाटर। कहाँ से आता है? पहाड़ों से। लिविंग वाटर, जिंदा पानी। लिविंग वाटर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, लिविंग वाटर आपके अंदर एनर्जी देता है। तो हमने जब लिविंग वाटर का प्रयोग किडनी फेल के पेशेंट पे किया, चमत्कारी रिजल्ट आए। 10-10 दिन में पेशेंट का डायलिसिस बंद हो गया, किसी का पहले दिन से बंद हो गया, किसी का 15 दिन में हो गया। ऐसे ही ये पूरा हील एक कंसेप्ट है। थैलीसीमिया का पेशेंट जिसका खून नहीं बनता था, हर 7 दिन में, 10 दिन में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता था, वो बिल्कुल बंद हो गया। और अब वो बिना ब्लड चढ़ाए वैसे ही उसकी बॉडी में खून खुद बनने लग गया। तो ये पूरा हिम्स का कंसेप्ट है। और साथ में सबसे बड़ा रोल है डाइट का। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं, क्या कम खाएं, क्या अच्छा, क्या बुरा, और किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी ट्रेनिंग, ये पूरी एजुकेशन हमारे हिम्स में, हमारे पूरे भारत में जो 130 क्लिनिक है वहाँ पर सिखाया जाता है। और हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये सब टेक्निक, सब कुछ बताते रहते हैं ताकि लोग अपना डॉक्टर खुद बन जाएं। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜਕੱਲ ਯੂਥ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਬਦਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦੇ ਨਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। लीवर फेल दे घटो घट 1.5 लाख पेशेंट बन रहे हैं। हार्ट अटैक दे पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है। अब 2019 में पूरी दुनिया में 24 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसमें 17 लाख भारतीय थे। यानी कि एक्सीडेंट के बाद भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। और हार्ट अटैक की मौत के मामले में भारत नंबर 1 पे है। ऑपरेशन से बच्चों के मामले में भारत नंबर 3 पे है। तो भारत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा, यूथ कैसे जुड़ेगा? जब यूथ को आयुर्वेद की महत्ता पता चलेगी। हमारी संस्कृति में आयुर्वेद में एक लाइन लिखी है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग, जितने भी रोग है दुनिया में, उनका एकमात्र निदान कुपित मल यानी कि गंदगी को, टॉक्सिन्स को निकाल दिया जाए तो आपको ठीक हो जाते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज लोगों की मौत हो रही है, हार्ट अटैक पड़ रहा है या हार्ट फेल हो रहा है। खड़े पैर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करेगा वो? क्या आपको, अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए आपके सामने, तो आप क्या करोगे, वो क्या करेगा बताओ? ऑन द स्पॉट तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऑन द स्पॉट क्या करोगे आप? डॉक्टर को फ़ोन करोगे, एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे और इंतज़ार करोगे, या उसको अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाओगे। तो मैं आपके चैनल पे एक तरीका बताना चाहता हूँ। इस तरह जैसे मैं बैठा हूँ कुर्सी पे नहीं, ज़मीन पे बिठा देना है पेशेंट को, ऐसे ऐसे बिठा देना है उसको, पेशेंट को। इसको बोलते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। जैसे ही हार्ट अटैक पड़े पहले ऐसे हो जाओ और फटाफट एक अदरक का बड़ा टुकड़ा मुंह में डाल दो और इसको बोलो चबाओ। इतना चबाओ कि आंखों से पानी आ जाए। आप हैरान होगे, 5 से 15 मिनट के अंदर वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। जब तक एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर आएगा या हॉस्पिटल लेके पहुंचोगे, तब तक पेशेंट उस खतरे से बाहर आ चुका होगा। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा आपकी जान बचा सकता है। तो मैं तो आपको भी बोलना चाहूँगा, सारों को बोलना चाहूँगा, घर में, ऑफिस में, दुकान में, अपने पर्स में अदरक ज़रूर रखो, क्योंकि किसी को भी हार्ट अटैक कभी भी कहीं भी पड़ सकता है। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈदिक अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले बेस्ट है ये? बिल्कुल बेस्ट है जी, फास्ट है जी। अच्छा, इससे फास्ट, अब आप कहते हो बुखार है, तो बुखार में आप बोलते हो कि कोई गोली खा लो। मैं नाम नहीं लेता किसी कंपनी का। अभी उस कंपनी में आरोप भी लगा था 650 करोड़ की, 1000 करोड़ की घूस देने का, कि ये जो पीछे पैंडेमिक चला, नाम नहीं लूँगा फिर वीडियो रुक जाएगी। इस पूरे पैंडेमिक में डॉक्टरों को 1000 करोड़ की रिश्वत दी गई डोलो 650 कंपनी की तरफ से, पैरासीटामोल कंपनी की तरफ से।
अब आपको बुखार उतारने का तरीका बताता हूँ। जैसे ही आपको बुखार का पहला लक्षण आए, बुखार का, जुकाम का, खांसी का या कमजोरी महसूस हो, बुखार फीलिंग आए कि मेरा बुखार बढ़ना शुरू हुआ है, उसी मिनट से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देना है। नारियल पानी, मौसमी का जूस, अदरक का टुकड़ा, गर्म पानी पीना है। अब क्या करना है, इतने पाँव, एक बड़ी बाल्टी लेनी है, उसमें गर्म पानी भरना है 40 से 42 डिग्री, और उसमें अपने पाँव डुबोने हैं यहाँ तक, और ऐसे सीधा बैठ जाना है। अगर नहीं बैठ सकते तो लेट जाओ, पैर डूबे रहें, और साथ में 1 कप हर्बल टी या काढ़ा या गरम गरम पानी घुट घुट करके पीना है। आधे घंटे से 2 घंटे में 99% चांस है आपका बुखार पहले झटके में चला जाएगा। अगर फिर भी शाम को दोबारा चढ़ता है तो यही उपाय दोबारा उसी दिन शाम को, नहीं तो दोबारा फिर कर लें। 2 दिन के अंदर आप अपने बॉडी के बुखार, जुकाम, खांसी को ठीक कर सकते हो। और जुकाम है तो एक काम और करो, एक ना मार्केट में सॉस की बोतल आती है, लाल सॉस वाली बोतल आती है, जिसको पिचकू बोतल बोलते हैं। उस पिचकू बोतल के अंदर गुनगुना पानी भर लो, थोड़ा सा नींबू डाल के या हल्का सा नमक डाल के, और ऐसे बैठ के नाक के एक साइड पे पिचकू बोतल को दबाओ तो इधर से पानी निकल आएगा। 3-4 बार ऐसे करो, फिर 3-4 बार इधर से करो, तो नाक के अंदर जो वायरस पड़ा है, जो म्यूटेट हो रहा है, वो भी खत्म हो गया आपका। तो ये बड़ी आसानी से एलोपैथी से फास्ट, बिना खर्चे के आप घर पे बुखार, जुकाम, खांसी, गला खराब को ठीक कर सकते हो। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। देखो, आजकल की दवाइयाँ और फास्ट फूड ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। आजकल पूरा भारत, पूरा देश बीमार है, खराब है। आप बताओ, बच्चे नहीं हो रहे, लेडीज़ के बच्चा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, पुरुषों में शुक्राणु खत्म हो रहे हैं, दिमाग की गोलियां, डिप्रेशन की गोलियां, नींद की गोलियां युवा खा रहा है, नशों की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब किसी की सेक्स पावर कम होती है वो नशे की तरफ चल पड़ता है। किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी की किडनी फेल है, किसी का लीवर ख़राब है, कोई शराब पी पी के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, कोई अंडे खा के, नॉनवेज खा के ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। क्योंकि हम तो कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, हम कहते हैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम तो दूध और दूध की बनी चीज़ों को भी मना करते हैं। हम कहते हैं दूध पीना, नारियल का पी लो, मूंगफली का पी लो, बादाम का पी लो, और उसी की दही बना के खा लो। तो ये इतने बढ़िया टेक्निक्स हम सिखाते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी क्लिनिक्स में, कि पूरा भारत घर बैठे ही स्वस्थ हो सकता है, सुखी हो सकता है और अपने आप को समृद्ध बना सकता है। क्योंकि भारत सरकार के हेल्थ मंत्री ने 2018 में खुद संसद में खड़े होकर बोला था कि 2017 में 2,67,00,000 मरीज गरीबी रेखा से नीचे चले गए इलाज की वजह से हॉस्पिटलों के। तो अब आप बताओ, इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? लोगों को गरीब कर रहा है ये सिस्टम जो हम हॉस्पिटलों में भीड़ देख रहे हैं। तो हमारा, आपका, सबका ये मुहिम होना चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बने और अपने आप ही अपनी बीमारी को हम ठीक करें, घर पे बैठ के ही। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ टाइम? देखो, लोगों को आयुर्वेद का पता चला है, लोगों को नॉलेज बढ़ी है, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टरों को जो मोटे मोटे इंसेंटिव मिलते हैं, उनको जो बड़ी बड़ी बातें, वो ऐसी टर्म्स बोल देते हैं, नए नए नाम बोल देते हैं, उससे पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है ये इंग्लिश बोलने वाला डॉक्टर ही सियाना डॉक्टर है और ये दूसरे डॉक्टर सारे झोला छाप डॉक्टर हैं। जबकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा, डॉक्टर की डिग्री का नाम क्या है? MBBS, यही सुना है आपने? एक्चुअल उनकी असली डिग्री क्या नाम है? BMBS डिग्री। कभी उनका बोलो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, उस पर लिखा हुआ है BMBS। अब आप बोलोगे MBBS क्यों लिखते हैं? ये नहीं लिखते, ये पूरा मेडिकल माफिया है। जानबूझ के डिग्री M लिखी जाती है कि लोगों को लगे ये मास्टर डिग्री है, ये बड़ी डिग्री है। जबकि आयुर्वेद की डिग्री भी, आयुर्वेद के डॉक्टर की डिग्री भी BAMS है, होम्योपैथी के डॉक्टर की डिग्री भी BHMS है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर की भी डिग्री BNYS है। तो सबकी डिग्री B से है, B मतलब बैचलर डिग्री है ये। तो MBBS की डिग्री भी BMBS है, MBBS नहीं है। लेकिन वो हम उस प्रेशर में कि ये इंग्लिश बोल रहा है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये सियाना डॉक्टर, हम चले जाते हैं और हम लुट कर आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एलोपैथी बुरी है, मेडिकल साइंस सही है, लेकिन उसके जो एजेंट्स हैं, जो चाहते हैं ज़िंदगी भर दवाइयाँ खिलाएं। जैसे आपको बोला जाता है थायराइड है, ज़िंदगी भर गोली खाओ। क्यों? क्या अनुलोम विलोम करके, कपालभाति करके, उज्जाई प्राणायाम करके, डाइट ठीक करके थायराइड ठीक नहीं होता? सैकड़ों पेशेंट है, हमने ठीक किया है। शुगर है, बोला जाता है ज़िंदगी भर गोली खाओ। क्या आप कोई प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम करके, कोई कड़ी पत्ता खा के, कोई हरी चटनी खाकर या करेले नीम का उपाय करके क्या शुगर ठीक नहीं हो सकती? हो सकती है। हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की किया है। ऐसे ही BP ठीक किया है, किडनी फेल ठीक किया है, लीवर फेल ठीक किया है। हमारी संस्था में भी 300 डॉक्टर काम करते हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। किसी का भी BP बहुत हाई है, किसी की भी शुगर बहुत हाई है,
किसी की भी किडनी फेल है, क्रिएटिनिन बहुत हाई है, आप एक उपाय करो, 5-7 करेले लो और 50-70 पत्ते नीम के लो और इन सबको चॉप 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 करके कद्दूकस करके एक चटनी सी बना के पैरों के नीचे रख लो, नंगे पाँव एक परात में रख लो और परात में पैरों से ऐसे 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 करो। 15 से 20 मिनट में आपकी जीभ पर करेले और नीम का स्वाद आ जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने नंगे पाँव करा, ऐसे ऐसे करा, जीभ पर स्वाद कैसे आ गया? इसका मतलब मेरे पैरों में रिसेप्टर्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो मुंह तक आ गया। जब मुंह में स्वाद आया उसके बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा करो और अपनी शुगर चेक करो, अपना बीपी चेक करो और अपना क्रिएटिनिन चेक करो। आप हैरान हो जाओगे कि करेले और नीम वाला उपाय इतना फास्ट है, इतनी जल्दी काम करता है। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान को आज नॉलेज की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है और एक क्रांति आप लोगों की मदद से, युवा पीढ़ी के माध्यम से ही आएगी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਖਾਈਏ, ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਈਏ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਗੇ, ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਓਵਰ ਐਕਸੈਸ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। सफ़ेद नमक एक दिन में कितनी मात्रा में खाना चाहिए आप बताओ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰॉक सॉल्ट खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है या सेंधा नमक खाओ। सफ़ेद नमक के लिए WHO की गाइडलाइन कहती है 2 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना चाहिए, जबकि हमारे घरों में सलाद पे नमक, फ्रूट पे नमक, ब्रेड में नमक, परोठे में नमक, दही पे नमक, रायते में नमक, कुछ नहीं मिलता लोगों के जख्मों पे नमक। ऐसे करके हिंदुस्तान चल रहा है, इतना नमक खाते हैं आप लोग। तो प्लीज़ नमक छोड़ दी, भुजिया में नमक है, आप कितनी चीज़ों में नमक है, तो 2 ग्राम से ऊपर नहीं खाना होता। तो ये आप लोग, हमने हिसाब लगाया था, एक परिवार का एग्जाम्पल लिया था, 4 लोगों का परिवार, मियाँ बीवी 2 बच्चे, हमने चेक करा 1 पैकेट नमक महीने में ख़त्म होता है, तो रोज़ का इससे आता है 8 ग्राम एक बंदे के। तो किडनियाँ फेल होंगी ना, लीवर फेल होगा। तो सफ़ेद नमक छोड़ दीजिए, सेंधा नमक से दोस्ती पाल लीजिए। सेंधा मतलब पाकिस्तानी नमक बोलते हैं जिसको, वो नमक अच्छा है। दूसरा, चीनी से नाता छोड़ दीजिए, चीनी में फास्फोरस है, केमिकल है और उसमें उसको वाइटनिंग करने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उससे भी बहुत नुकसान होता है। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, और गुड़ भी पीला नहीं, जो भूरा काला गुड़ है, यानी कि बिना सोडे वाला। वो शुरू से एक ऐड नहीं आती, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आई, वो लड़की घूम घूम के कई साल से गाना गा रही है, तो गुड़ में निरमा डाल देते हैं और गुड़ को सफ़ेद कर देते हैं। वो गुड़, निरमा वाला गुड़ नहीं खाना। और सुन लो, भारत सरकार के मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बोला भारत में कि भारत में बिकने वाला 2/3 दूध नकली है, डिटर्जेंट वाला है, यानी कि निरमा से ही सफ़ेद किया जाता है उसको भी। तो ये निरमा खाली कपड़े सफ़ेद नहीं करता, ये दूध को भी सफ़ेद करता है। तो कृपया करके ये मार्केट की मिठाइयाँ और दूध ये बंद कर दो। किडनियाँ फेल, लीवर फेल, कैंसर, ब्लड कैंसर, थैलीसीमिया, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, ये सेक्स पावर की कमी, बहुत बीमारियाँ हो रही हैं इससे। तो चीनी छोड़ो और नमक छोड़ो, उसकी जगह गुड़ अपनाओ और सेंधा नमक अपनाओ। इसके अलावा सूरज डूबने के बाद अगर पूरा भारत खाना खाना बंद कर दे तो भी हॉस्पिटलों में भीड़ खत्म हो सकती है। खाने को चबा चबा के खाना खुद शुरू कर दे तो भी हॉस्पिटलों में भीड़ कम हो सकती है। कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 45 मिनट बाद, वो भी पीना है तो गर्म पानी पियो, वो आपके लिए अच्छा है। और एक कंसेप्ट शुरू कर दो, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 प्लेट 2 को हम DIP डाइट बोलते हैं। DIP डाइट में क्या होता है, 12 बजे तक चाहे शुगर, मैं आपको एक बताता हूँ, शुगर ऐसे चुटकियों में 3 दिन में लगभग 80% लोगों की 3 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या करना है, 12 बजे तक 4 से 5 तरह के फ्रूट्स खाने हैं। कितना, वजन गुणा 10 ग्राम। जैसे वजन आपका 70 किलो है तो गुणा 10 मतलब 700 ग्राम आपने फ्रूट्स खाने हैं नाश्ते में 12 बजे तक। उसका लंच में वजन गुणा 5 ग्राम आपने सलाद खाना है, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो भी, और ऊपर से जो भी रोटी चावल खाना है वो खा लो। ऐसे ही डिनर में सूरज डूबने से पहले पहले वही वजन गुणा 5 ग्राम, फिर सैलेड खा लो। अगर आप ऐसा खाना खाते हो और ग्रीन जूस, रेड जूस पीते हो और अर्थिंग करते हो, धरती के संपर्क में आते हो, लिविंग वाटर पीते हो, तो शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, थैलीसीमिया, आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को घर बैठे हरा सकते हो। और अगर आपको लगता है हम घर बैठे नहीं कर सकते तो पूरे भारत में हमारे 130 क्लिनिक्स है, डॉक्टर बैठते हैं, 1 to 1 मिलो, बात करो। पूरे भारत में हमारे 14 हिम्स के नाम से हॉस्पिटल हैं, 4 बड़े हैं, 10 छोटे हैं, वहां के डॉक्टर से मिलकर समझ सकते हो। नहीं तो हमारे यहाँ एडमिट होकर डिटॉक्स कराकर भी इलाज करा सकते हो, ठीक हो जाओगे आप। एक विश्वास रखो कि भगवान ने हमें अपनी छवि के रूप में बनाया है, हमारे शरीर में ही शक्ति है हर बीमारी को हराने की। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का निदान एक ही है, अपने अंदर की कुपित मल और गंदगी निकाल दो। जिस तरह फैक्ट्री
घर दुकान की आप सफाई करते हो दिवाली पर, ऐसे अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम की सफाई करो दिवाली पर। और हर साल दिवाली से पहले नवरात्रे आते हैं, अभी खत्म हुए 4 दिन पहले। ये नवरात्रे, ये 9 दिन, ये त्योहार था अपने अंदर को क्लीन करने का, रिजनरेट करने का। लेकिन हमें लोगों के फोन पता क्या आते हैं, सर व्रत है क्या खाएं, जी करता है पहले तो पिटाई करें उनकी, सर लिम्का पी ले, सर माजा पी ले। भैया क्या बेवकूफ़ी करते हो, लिम्का माजा में आम पड़े हैं क्या, केमिकल है। ये जो फ्रूट जूस के डब्बे आप पीते हो, ये भी निरा केमिकल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, घर में लीची का जूस निकालो, 100 ग्राम जूस निकलते हैं, और 100 रुपए की लीची है उसमें 100 ग्राम जूस निकलता है, 100 रुपए का तो 100 ग्राम निकलता है। वो 1 लीटर 100 रुपए का कैसे दे रहे हैं, जबकि डब्बा भी लगा हुआ है, जिसने बेचा उसको भी पैसे चाहिए, जिसने बनाया उसको भी पैसे चाहिए, बिपाशा में उसने डब्बा पकड़ा उसको भी पैसे चाहिए। तो कैसे बनता है, ये केमिकल है, कोल्ड ड्रिंक से भी खतरनाक। तो ये डब्बे वाले जूस बंद करो। और अभी जो दिवाली पर लेकर जाओगे लोगों घर में, तो ये मत लेके जाओ, लेकर जाना है हर्बल टी लेकर जाओ, कोई गिलोय की टैबलेट गिफ्ट कर दो, किसी को अश्वगंधा गिफ्ट कर दो, किसी को शिलाजीत की टैबलेट गिफ्ट कर दो, मतलब जड़ी बूटियां गिफ्ट कर दो। किसी को ऐसे पैक बनाओ ना, हैम्पर पैक बनवाओ, कोई हर्बल टी का पैक बनवाओ, ऐसी कुछ चीजें गिफ्ट करो तो उसका भला होगा। या उनको फिर हमारी वीडियो गिफ्ट कर दो कि भैया ये वीडियो देख, अपना जीवन सवार। हमारी सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, जो जो हम जानते हैं हम सब यूट्यूब पे फेसबुक सिखाते हैं। तो दिवाली पर शुद्धो देहा मनश्य यस्य सजीति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। इस कंसेप्ट पर काम करो, पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਡਾਈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਓਰ ਡਾਈਟ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਖਾਓ, ਪਰ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਬਲ ਟੀ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡਾਈਟ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਨੂ ਸ਼ਰਮਾ।